Hello students, welcome all of you. So today we are going to read science for class 7, and this is our unit 3rd. Name is fiber to fabric, and in this unit we will learn about wool and silk and health hazards in wool and silk industries. ओके तो इस यूनिट में हमको जो फाइबर है वूल फाइबर सिल्क और हेल्थ हैजर्ड्स फ्रॉम द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री इन सब के बारे में जानना है. ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज फ्रॉम harsh weather condition, dust, insect, etc. Clothes are made from fabric, and fabric is made from yarn, and yarn is made from fibers, and fibers can be natural or man-made synthetic. ओके हम सबको पता है कि हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए. किससे? हार्श वेदर से, या फिर डस्ट से, या फिर एंड किसी इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से. हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए कपड़े पहनते हैं. वो कपड़े किसी के बने होते हैं? फैब्रिक के. ठीक है, फैब्रिक होते हैं कपड़े टाइप कपड़े की स्ट्रक्चर होता है जो बेसिक यूनिट होती है कपड़े की. और वो किससे बना होता है? फैब्रिक यार्न से. ठीक है, सूत बोलते हैं जिसको, या फिर थ्रेड धागा होता है फाइबर का. और ये यार्न किससे बना होता है? फाइबर से. ठीक है, और फाइबर क्या होता है? फाइबर इज द फिलामेंट. फाइबर इज द फिलामेंट of filament or basic filament or basic unit of fabric that is obtained from animals, plants or can be man made. ठीक है, so fiber is the basic unit of clothes. Now move to the second point. You have already learned about different type of fibers and their sources. Fibers are broadly classified into two categories. One is the natural fiber and second is the synthetic fiber. And natural fibers are further of two types: plant fibers and animal fibers. The fibers obtained from plants are called plant fiber, while those obtained from animals are called animal fibers. Fiber that are manufactured in factory by chemicals are called synthetic or man-made fibers. ठीक है, तो बेसिक यूनिट हो गई फैब्रिक की फाइबर. और फाइबर किससे ओपन होता है? इधर प्लांट से और एनिमल से. और जो फाइबर प्लांट से मिलता है उनको हम बोलते हैं प्लांट फाइबर, और जो फाइबर हमको एनिमल से मिलता है उनको बोलते हैं हम एनिमल फाइबर्स. और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स. ओके, पॉलिस्टर, रेयन, सिल्क एंड वूल, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स. ओके, एंड in this unit we also learn about the some important fibers. Okay, so let's move. In this chapter we will learn about two animals fibers, wool and silk. Okay, तो अब हमको जो दो एनिमल्स फाइबर है, वूल एंड सिल्क, दोनों एनिमल फाइबर है. अब इनके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज द वूल फाइबर. एज यू नो, wool is a animal fiber because it obtained from a animals. So wool is an animal fiber obtained from the fleece of animal like sheep, goat, yak, etc. The fleece trap air in the space between them, preventing the body heat from escaping, thus keeping the animal warm. Wool is a better insulator than synthetic fibers like nylon, polyester and other natural fibers like cotton, silk, etc. We wear woolen clothes in winter to protect ourselves from cold.
Wool is mostly obtained from the fleece of sheep. A sheep's hairy skin has two types of fibers, the coarse beard hair and the soft under hair found close to skin. There are different varieties of sheep that provide us wool. The quality of wool differs from breed to breed. The merino breed of sheep provides the finest wool, which is soft and light. And the selective breeding is the process of selecting parent for obtaining special characters in the offspring, such as soft under hair in sheep. Okay, now what is the wool fiber? Wool fiber is obtained from animals like sheep, goat and yak. ओके, तो ये देखो, ये पिक्चर में आपको एक शीप दिख रही है, भेड़ दिख रही है। इसके जो फ्लीस, इसके जो ये बारे, इसके बॉडी के चारों तरफ ये जो बाल है, ठीक है, जो रेसे हैं बालों के, इनके जो बाल है जिसको हम ऊन बोलते हैं, चारों तरफ इनको काट के फैब्रिक बनाया जाता है। और जो ये फ्लीस है, ठीक है, जो ये ऊन है, इसके बाल हैं, इनके बीच में एयर होती है। ओके, और एयर क्या होती है? जो कि टेम्परेचर का हीट टेम्परेचर या फिर हीट का इंसुलेटर होता है। मीन ये हीट को बाहर से इस सीप के अंदर को ट्रांसफ़र नहीं करती, या इसके अंदर की जो हीट है उसको बाहर ट्रांसफ़र नहीं करती, क्योंकि जो एयर है, इनके जो ये फ्लीस है, इनमें ट्रैप हो जाती है। और वी नो एयर इज ए गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, ठीक है। तो इसलिए इनको सर्दियों से बचाती है। सर्दियों में क्या होता है, इनकी बॉडी टेम्परेचर तो फिक्स होता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हीट क्या करती है, इसके बॉडी से अंदर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जो इसके बाल हैं चारों तरफ, जो फ्लीस हैं, इनमें जो ट्रैप्ड एयर होती है वो हीट ट्रांसफ़र को रोक लेती है, जिससे इनको ठंड नहीं लगती। ओके, और जो ये जो इसके जो भेड़ के बालों से जो हमको फाइबर मिलता है उसको हम वूल बोलते हैं, और ये बेटर होता है देन द सिंथेटिक फाइबर लाइक इज नायलॉन, पॉलिस्टर एंड अदर फाइबर लाइक कॉटन, सिल्क। ओके, सबसे बेस्ट होता है वूल। और वूल किसे भेड़ के ऊन से मिलता है वूल। और इस भेड़ में दो टाइप के हेयर होते हैं, एक तो होता है कोर्स ब्रेड हेयर और दूसरा होता है सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि इसकी स्किन के बहुत ही क्लोज पाए जाते हैं। और जो ये वूल है, वूल की जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट ब्रीड की जो भेड़ है उसमें डिफरेंट टाइप की वूल्स हमको मिलती है, ठीक है। जैसे भेड़ की नस्ल होगी हमको उसी क्वालिटी की वूल मिलेगी, ठीक है। और जो मैरिनो ब्रीड है, इस नस्ल की जो भेड़ है उससे जो हमको वूल मिलती है वो सबसे सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, सबसे फाइन होती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वूल। टाइम टेबल गिवन below tell us about some breeds of sheep and the quality of wool obtained from them. Name of breed: Lohi. It is found in Rajasthan, Punjab, and the quality of this wool: good in quality and used to make sweater and shawl. Second is the Nali. Nali is the breed of sheep found in Rajasthan, Haryana and Punjab, and the quality of wool obtained from this type breed of sheep used in the carpet wool, like the Bakarwal in Jammu Kashmir. Quality of wool: good quality for shawl. Next is the Marwadi in Gujarat, and the wool is the coarse wool, तो ये तो मोटी होती है। And Patanwadi, Gujarat, is used for this wool used for the hosiery. And sheep are herbivorous animal that eat grass and leaves. Rears also feed sheep on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. They are kept
indoors in winters and feed on leaves and dry fodder. अब देखो, जो कुछ कंट्री होते हैं वो वूल ऑब्टेन करने के लिए भेड़ों को पालते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं। जैसे एशिया होगा, आइसलैंड हो गया, यूरोप हो गया, क्योंकि जो ये ऊन वाली भेड़ें होती हैं वो हमेशा कोल्ड रीजन में मिलती है। ठीक है, फिर इंडिया में कोल्ड रीजन कैसे कहाँ पे हो गया? ठंडा इलाका, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, ये वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि कोल्ड, जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इनकी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए इनके जो हेयर होते हैं, जो फ्लीस होती है वो बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जिसको हम काट लेते हैं और उसको वूल कहते हैं, और कपड़े बनाने में वो काम आते हैं। और ये सब डिफरेंट टाइप की जो ब्रीड थी, नस्ली थी भेड़ों की, उनके बारे में बताया गया है कि उनसे कौन से टाइप की वूल मिलती है और वो किस में यूज आती है। ओके, और हम देखते हैं कि जो भेड़ हम जो पालते हैं, ठीक है, भेड़ हमें से क्या होती है? हर्बीवोर्स। व्हाट इज द हर्बीवोर्स? द एनिमल ईट ओनली प्लांट एंड लीव्स। ठीक है, शाकाहारी होती है, जो कि पत्तियाँ या फिर पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, डजेंट ईट एनी फ्लैश और मीट। लेकिन जो कुछ भेड़ों को पालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? उनको एक मिक्सर देते हैं जिसमें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल के मिनरल्स होते हैं, ताकि जो सीप है उनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। ठीक है, और जिससे जो वूल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। ओके, सो यू कैन सी दिस इज यार्क, दिस इज कश्मीरी गोट, and this is angora rabbit, and this is chiru. We obtain wool from all of these animals, and all of these animals founded in cold regions. In next, wool from other animals. अभी तो हमने पढ़ा था वूल फ्रॉम शिप से, लेकिन भेड़ के अलावा और भी जानवरों से वूल मिलती है। अब हम उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑफ कैमल्स लाइक द बैक्टीरियन कैमल्स, एल्पका एंड लामा, फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल। ठीक है, अभी जो भेड़ के जो अलावा है, भेड़ के अलावा हमको ऊँट की नस्ल होती है, ठीक है, उनसे मिलता है। जैसे अल्पाका हो गया, लामा हो गया, बैक्टीरियन कैमल हो गई, उनसे मिलती है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है। सेकंड इज द याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत एंड लद्दाख का जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर याक होती है, ये याक है, इससे हमको भी वूल मिलती है इनके बालों की कटिंग से। थर्ड इज द कश्मीरी वूल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट। द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट इज यूज्ड टू मेक फाइन शाल called pashmina shawl. The angora goat provide fine fiber called mohair. और जो कश्मीरी जो हमको वूल मिलती है, कश्मीरी वूल किससे मिलती है? कश्मीरी गोट से मिलती है, जिसको किस में यूज लिया जाता है? पश्मीना शॉल। कश्मीर की फेमस शॉल होती है पश्मीना शॉल, उसको बनाने में काम आता है। और जो अंगोरा, ये देखो रैबिट है, खरगोश है, अंगोरा खरगोश, इसकी भी बॉडी पे जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, फ्लेश होते हैं, उनसे भी हमको वूल मिलती है। और ये जो वूल होती है वो सबसे फाइन होती है। नाउ नेक्स्ट इज द अंगोरा रैबिट आल्सो प्रोवाइड फाइन वूल एंड वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ईच रैबिट कैन ओनली प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अंगोरा वूल। और जो इस अंगोरा और रैबिट से जो वूल मिलती है वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, क्योंकि ये रेयरली मिलते हैं। एक तो ये बहुत स्मॉल होते हैं, जिससे क्वांटिटी बहुत ही लेस होती है। ठीक है, क्वांटिटी लेस होगी वूल की, तो अवेलेबिलिटी कम होगी, तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और अवेलेबिलिटी सप्लाई कम होती है। नेक्स्ट इज द सैतूश विच इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फाइन वूल्स। ये इसको भी फाइन वूल्स का किंग बोलते हैं, क्योंकि इससे भी फाइन वूल मिलती है हमको। इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ तिब्बतियन एंटीपोल नॉन एज चीरू।
ये चिरो, ये देखो ये चिरो जानवर है, ये तिब्बत रीजन में पाया जाता है, ठीक है। They are hunted and killed to obtain their delicate hair. As a result, the population of chiru has decreased considerably. To stop their hunting, and government has banned the use and selling of the shoal from शहतूश। जो ये चीरू हैं, इनसे अब जो वूल मिलती है, तो वो वूल निकालने के लिए इनका शिकार किया जाता है और इनको मारा जाता है, जिससे इनकी जो नंबर है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट ने इनको हंटिंग को बैन किया है। और साथ में जो सेलिंग, जो शॉल बेचते हैं, शहतूश की बनी हुई शॉल बेचते हैं, उसको भी बैन कर दिया है, ताकि इनकी हंटिंग ना सके और इनकी जो स्पेसीज है वो एंडेंजर्ड ना हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ वूल। अब हम पढ़ेंगे जो वूल होता है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप हैं, वी विल रीड दिस स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज द शेयरिंग। एंड व्हाट द शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है, जो कि किसी भी भेड़ है या फिर गोट है, एनिमल है, जिसके फ्लीस होते हैं, ऊन होते हैं उनकी बॉडी में, उनको उस ऊन को रिमूव करने की या ट्रिम करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर और फ्लीस ऑफ द sheep along with a thick layer of skin is called shearing. It is done without harming the sheep using a manual razor or clipper. It is usually done every year in spring or in summer as the fleece is not required as an insulator during these month. जो इनके बॉडी से हम जो फ्लीस को निकालते हैं वो निकालते हैं इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग और समर, क्योंकि उस टाइम पे इनको बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्शन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मली कंडीशन पे आ जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज द स्कोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज द स्कोरिंग। अब स्कोरिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेडेड स्किन विथ हेयर टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस यूजिंग मशीन्स और इन टैंक्स इज कॉल्ड द स्कोरिंग। ओके, जो स्कोरिंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो डस्ट है, जो हेयर है उनसे डस्ट या फिर डर्ट है उसको, वो ग्रीस है, उनको हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप इज द ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग। And sorting is done after scouring. Hairy skin is sent to a factory for separating hair. This process of sorting the wool according to its texture, length and color is called grading. Small soft fibers are called burrs are separated from the hairs. अब शॉर्टिंग क्या होती है कि उनकी क्वालिटी जैसे कलर, शेप, लेंथ, उनके अनुसार उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डाइंग। व्हाट इज द डाइंग? द फ्लीस ऑफ sheep is usually white, brown or gray in color. To get the desired color, it is dyed in different colors. The dyed fibers are sent for carding, where these dyed fibers are strengthened by passing them through metal teeth. This process of strengthening the dyed fibers is termed as carding. डाइंग होता है रंगना। ठीक है, अब देखो, अब जो भेड़ से हमको जो फ्लीस मिलती है या फर या ऊन मिलती है वो जनरली कलर में तो वाइट होगी, ब्राउन होगी, फिर ग्रे होगी। लेकिन हमको कोई डिजाइन, हमारी डिजाइन के अकॉर्डिंग कलर चाहिए, उसको हम उस कलर में डाई कर देते हैं या उस कलर को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। उस प्रोसेस को, कलर इम्प्लीमेंट प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइंग बोलते हैं। ठीक है, और डाइंग करने के बाद में उसको एक मेटल टीथ से होकर पास किया जाता है, जिससे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। ओके, स्ट्रेंथिंग हो जाता है। नेक्स्ट इज द ड्राइंग। द वूल इज ड्राइड एंड सेंट फॉर स्पाइनिंग इनटू यार्न. It is then weighted and packed into bales. Longer fibers are made into wool for sweaters, and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. अब देखो, अब फिर हमको ये डाइंग के बाद में जो हमको
हमारा जो वूल था उसको हम सुखाते हैं, ठीक है, ड्राई करते हैं, ड्राई करने के प्रोसेस को ड्राइंग बोलते हैं, और फिर उसको यार में चेंज करने के लिए उसको स्पाइनिंग प्रोसेस में भेज देते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे उसको एक बेल्स में जो गिट्टी होती हैं उनके फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यार्न बना के, धागा बना के गिट्टियों में कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ से उनको जो वो वूल है वो बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में होती है, उसको स्वेटर या फिर स्वेटर बनाने में काम आती है, जो लंबी वाली वूल होती है, और जो छोटी फाइबर होती है उसको वूलन क्लॉथ बनाने में काम आती है, ठीक है। जो स्पाइनिंग प्रोसेस करते हैं हम, यार जो सूत बनाते हैं वो दो तरह के बनते हैं, एक तो लंबा सूत और एक छोटे छोटे सूत, ठीक है, छोटे छोटे धागे थ्रेड बनते हैं। वो जो लंबा सूत है किसमें काम आते हैं, जो स्वेटर बनाने में, और जो छोटे होते हैं वो वूलन के कपड़े बनाने में काम आते हैं। ओके, सो यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ठीक है, स्काउरिंग, कार्डिंग एंड स्पाइनिंग वूल फॉर्म इनटू यार्न। अभी बताया था, एक फर्स्ट स्टेप में तो उनके बॉडी से वूल को उतारते हैं, सेकंड में उनको धोते हैं ताकि डस्ट है डट रिमूव सके, थर्ड कार्डिंग में करते हैं उनको कलर करने के, डाइंग करने के बाद में मेटल टी से पास करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथन हो सके। फिर लास्ट प्रोसेस में उनको सुखाने के बाद में, डाइंग करने के बाद में उनको बेल्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और यार्न में चेंज कर देते हैं ताकि वो क्लोथ्स और स्वेटर बनाने में यूज कर सकें। सिल्क प्रोसेस, and you know very well about the wool process, how to wool obtain, okay, and what is the process involving in production of wool. Same thing we are going to discuss about the silk and the step involved in the production of the silk. So first of all, read the first point. Silk is an animal fiber obtained from the thread like filament spun by silkworm. Second is the silk is soft and lustrous. Third point, silk does not conduct heat and is thus a good insulator and keeps us warm in winter and cool in summer. अब देखो सिल्क है, वो सिल्क कैसे मिलता है, ये देखो एक कीड़ा होता है, ऐसे कीट होता है जिसको हम सिल्क वर्म बोलते हैं, और एक थ्रेड जैसे धागे तरह लंबा स्ट्रक्चर होती है धागे की तरह, और ये भी जो सिल्क है वो हमको एनिमल से मिल रहा है, तो ये भी एनिमल फाइबर हो गया, सिल्क भी। सेम थिंग वूल भी एनिमल से मिला था और सिल्क भी एनिमल से, क्योंकि कीट क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। और सिल्क होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और लस्ट्रस चमकदार भी होती है, ठीक है। और जो सिल्क होती है वो हीट का कंडक्ट नहीं करती है, और ये गुड इंसुलेटर होती है हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, उसका गुड कंडक्टर होती है, तो इसलिए ये गर्मियों में तो हमारी बॉडी को कूल रखता है और सर्दियों में वार्म रखता है। कैसे, जैसे मान लो हमने सिल्क के क्लॉथ पहन लिए तो हमारे बॉडी टेम्परेचर तो ऑलवेज 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, चाहे बाहर सर्दी पड़ो या गर्मी पड़ो। लेकिन जैसे बाहर को सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है बाहर का, तो हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को ट्रांसफ़र होती है, यानी हमारी बॉडी से बाहर को ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जो सिल्क है, सिल्क का जो हमने कपड़े पहन रखे हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होता है किसके, हीट ट्रांसफ़र के, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, और वो हीट हो गई होती है हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है, जिससे हमको ठंड नहीं लगती और गर्मी का फील होते हैं। सेम थिंग इन समर में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो बाहर की जो हीट है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, हमको गर्मी लगती है। लेकिन यदि हमने सिल्क के कपड़े पहन रखे हैं तो वो सिल्क क्या होती है, हीट का इंसुलेटर होती है, जो हीट को बाहर से हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देगा, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमको कूलिंग फील होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिल्क। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क माथ। अभी हमने देखा था कि जो सिल्क है वो एक
इंसेक्ट से, जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उससे ऑप्टेन हो रही थी। अब हम उस सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ साइकिल को जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस डायग्राम यू कैन सी क्लियरली दीज आर द एग्स ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये एग्स जो सिल्क वॉर्म होते हैं, कीट होते हैं सिल्क के, वो कहाँ पे देते हैं? शहतूत के पत्तों पे देते हैं। ठीक है, ये शहतूत के पत्ते आ गए। अब कुछ दिनों बाद में ये शहतूत के जो ये इनके जो एग है वो एग हैच कर जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, और उनसे जो कीट निकलेंगे, जो लार्वा बोलते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात ये कीट बड़े हो जाते हैं, अपने से 4 टाइम हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो मलबरी शहतूत है उसके पत्तों को खाते रहते हैं। ठीक है, तो पत्ते को खाने के बाद में ये करते हैं, इन्हें ग्लैंड से एक फिलामेंट को सीक्रेट करेंगे, अपनी बॉडी से निकालेंगे। ठीक है, और जो फिलामेंट जो निकालते हैं वो क्या होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है, और एयर के कांटेक्ट में आते ही वो थोड़ा टफ हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो ये इंसेक्ट थे, ये उस सिल्क जो फिलामेंट है, सिल्क का फिलामेंट है, उसको अपनी बॉडी के चारों ओर लपेटना स्टार्ट कर देते हैं, और जब बॉडी चारों तरफ लपेट लेंगे तो हवा के कॉन्टेक्ट में आने पे वो थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, उनमें स्ट्रेंथ आ जाती है, और जैसे देखो ये दिख रहा है आपको कुक्कून को वही उसको बोलते हैं कि इसके अंदर जो कीट था उसने अपने चारों तरफ जो सिल्क था फिलामेंट उसको लपेट लिया, और उसके अंदर कीट होता है। तो उस जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं कुक्कून। ठीक है, अब ये कुक्कून है। अब कुक्कून के अंदर से जो सिल्क का कीड़ा है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ गया, और बाहर जो स्ट्रक्चर बची है उसका घोंसले टाइप की जो स्ट्रक्चर बची है, होलो स्ट्रक्चर, उसके अंदर कीट तो निकल गया, और बाहर जो स्ट्रक्चर बच गई वो क्या होती है? हमारे सिल्क होती है। इस सिल्क को हम फैक्ट्री में ले जाएंगे, और वेरियस प्रोसेस के थ्रू उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। फिर ये जो कीट इंसेक्ट है वापस ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा होने के बाद में वापस से एग देगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। ओके, सो we will discuss about this process here. So first step is the silkworm is the larva or caterpillar of the domesticated silk moth. Mulberry silk moth is the most common silk moth. अब बताया था कि जो सिल्कवर्म होते हैं उसको लार्वा भी बोलते हैं, फिर कैटरपिलर भी बोलते हैं, जो कि शहतूत के पौधों पे पाए जाते हैं, और मैक्सिमम जो मुझे सिल्क मिलते हैं वो शहतूत के पौधे पे शहतूत के पेड़ पे पाए जाने वाले कीट या इंसेक्ट से भी मिलता है। सेकंड है द फीमेल सिल्क माथ विच इज शॉर्टर एंड स्टोटर देन द मेल lays 300 to 400 eggs at a time or leaves. After some days the eggs hatch and black larvae or silkworm emerge. अब देखो जो फीमेल सिल्क माथ है, ठीक है, फीमेल जो सिल्क का कीट है वो मेल से छोटा होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक साथ ही एक टाइम पे 300 से 400 अंडे देते हैं, और कुछ समय बाद ये अंडे हैच होंगे, मतलब टूटेंगे, तो टूटने पे उनके अंदर से जो कीट निकलता है उनको हम लार्वा बोलते हैं, वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नाउ आफ्टर द इमर्जिंग ऑफ लार्वा the larval stage lasts for about 24 to 27 to 28 days. During this stage the larvae shed their skin 4 times. This process is called molting. जो लार्वा स्टेज है वो 27 से 28 दिन की चलती है, और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लार्वा इंक्रीज इट्स स्किन 4 टाइम्स। जो अपनी बॉडी है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर लेता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। एंड द सिल्क वर्म फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड डेवलप ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क। अब बताया था कि भैया जो लार्वा होती है वो शहतूत की जो पत्ती होती है उनको खाते हैं, और ठीक है,
और सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर ग्लैंड्स। नेक्स्ट, द सिल्क वर्म सीक्रेट फाइन फिलामेंट फ्रॉम देयर ग्लैंड्स। बताया था उनके ग्लैंड से फाइन फिलामेंट सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, विच आर मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बने होते हैं, हार्डन ऑन एक्सपोजन, जो ऑन एयर, जो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं हार्ड हो जाते हैं। द फिलामेंट आर डिपोजिट इन लेयर फॉर्मिंग कुकून। अब बताया था उनके बॉडी की चारों तरफ वो बॉडी चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम कुकून बोलते हैं। और कुकून के अंदर जो कुकून के अंदर जो हमारा कीट इंसेक्ट था, कीट था, ठीक है, वो अपने आप को किस में ट्रांसफर कर लेगा, क्रिसलस में ट्रांसफर कर लेगा, और इस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूपा बोलते हैं, ठीक है। एंड द सिल्क वॉर्म कंटिन्यू टू डेवलप इनसाइड द कुकून एंड चेंज इनटू एन अडल्ट सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क का कीड़ा था वो अपने आप को डेवलप करता था किसके अंदर, कुकून के अंदर, और धीरे धीरे वो अडल्ट में चेंज आएगा। फिर जो सिल्क फाइबर्स है, कुकून है, कुकून से हमको सिल्क फाइबर मिलता है। ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क माथ, ठीक है, बोथ आर सेम, दिस एंड दिस। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सेम थिंग वी हैव लर्नड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वूल, now we will learn about the production of silk. So first, the rearing of silkworm for the production of silk is called sericulture. It involves the following steps. अब देखो, वूल ऑब्टेन करने के लिए हमने भेड़ों को पाला था, ऐसे सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमको जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क के कीड़े हैं, उनको पालना पड़ेगा, रेयरिंग करना पड़ेगा। एंड द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड द सेरिकल्चर। इसको सेरिकल्चर बोलते हैं, जो रेशम कीट पालन होता है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ताकि हमको इजीली सिल्क मिल सके। अब देखो, जो हमने जो ये सिल्क वॉर्म था, इसका हमने रेयरिंग किया था, इसका पालन किया था। अब इसको रेयर करने के बाद में ये एक साथ 300 से 400 एग देगा। अब बताया था वो एग कहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे देता है, इसकी पत्तियों पे देता है, लीव्स पे देता है, ठीक है। लीव्स के देने के बाद में लीव्स को खाते हैं, या फिर हमको जो सहतूत की जो मलबरी है उसके लीव्स को चॉप करके इनके आगे डाल देंगे, और ये उनको एज ए फूड कंज्यूम करेंगे, ठीक है। कंज्यूम करने के बाद में वो सिल्क का फिलामेंट है उनको सीक्रेट करेंगे और अपनी बॉडी के चारों तरफ उसको लपेट लेंगे। ओके, एंड फॉर्मड द स्ट्रक्चर, द फॉर्मेड स्ट्रक्चर इज कुकून। ऐसे कुकून स्ट्रक्चर बना लेंगे। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कीट होता है। फिर हम इस ऐसे कुकून को किसमें डाल देंगे, गर्म पानी में डाल देंगे। ओके, ये गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी डालने से होगा इनके अंदर का जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो मर जाएगा। फिर हम इसे जो कुकून स्ट्रक्चर है जिसमें वूल थी उसको ऐसे रीलिंग ऑफ द सिल्क स्टैंड, रील के थ्रू एक जो सिल्क के यार्न है या सूत है उनमें चेंज कर देंगे थ्रू द मशीन के थ्रू ऐसे धागा बना देंगे, और फिर बाद में ऐसे बंडल के फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे फिर ये यार्न बन जाएगा हमारा। फिर यार्न बनने के बाद में इनसे हम फैब्रिक बनाएंगे और फैब्रिक से क्लॉथ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ठीक है। जो सिल्क वॉर्म होता है उनकी रेयरिंग की जाती है। रेयरिंग करने के बाद में उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है, प्रॉपर वार्म्थ एनवायरनमेंट दिया जाता है जहाँ पे उनके एग अच्छी तरह डेवलप कर सके। फिर उनसे सिल्क वॉर्म निकलता है। सिल्क वॉर्म निकलने पर उनको हम जो मलबरी की जो लीव्स हैं उनको चॉप कर डाल देते हैं। उनको फीडिंग करने के बाद में वो कुकून की फॉर्म में चेंज होते हैं। कुकून फॉर्म में चेंज होने पर उनको हम हॉट वाटर में डाल देंगे। हॉट वाटर में जो इनके अंदर इंसेक्ट है वो तो किल हो जाएगा, और फिर कुकून है उसको हम मशीन के थ्रू रीलिंग कर देंगे। रीलिंग में इसको यार्न में चेंज कर देंगे, ठीक है। और फिर यार्न से हम फैब्रिक बनाएंगे और फैब्रिक से क्लॉथ बनेंगे। नाउ
different varieties of silk. Moth produce different variety of silk like Fasher silk, Muga silk, and Kosa silk. Mulberry silk is white in color and is the finest quality of silk. Okay, it is saying that different variety of silk, moth produce different variety of silk like that Fasher silk, Muga silk, and Kosa silk. These are the different variety of the silk. But the Mulberry silk is white in color and the finest quality of silk. ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था जो डिफरेंट ब्रीड की जो सीप है उनसे डिफरेंट वैरायटी के हमको वूल मिला था. ऐसे डिफरेंट टाइप के सिल्क वॉर्म में उनसे डिफरेंट वैरायटी की हमको सिल्क मिलेगी, लेकिन जो मलबरी सहतूत की सिल्क है वो सबसे फाइन होती है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ हैजर्ड्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री. अब जो इनकी प्रोसेसिंग होती है वूल और सिल्क की कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री में होती है, फैक्ट्री में होती है. ठीक है, जो उनका फ्लीस था, फर था, उन फर से या फिर जो कुक्कुन था उनसे सिल्क, कुक्कुन से सिल्क और फैब्रिक से वो फ्लीस से वूल बनाने की प्रोसेस कहाँ पे होती है, इंडस्ट्री में होती है. तो इंडस्ट्री में क्या स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स जो वर्कर काम करते हैं उनके कौन कौन से हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं और कौन कौन सी उनको डिजीज हो सकती है, और उनके बारे में हम एक ब्रॉड नॉलेज लेंगे. सो फर्स्ट इज द हेल्थ हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री. या इट्स राइट. सम हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो. In first point, it is saying that in the wool industry, the workers who short wool often suffer from a fatal disease called anthrax or shorters disease, which is caused by an infection of anthrax bacteria. देखो वूल इंडस्ट्री में एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया होता है. वो क्या करता है, जो वर्कर होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है. इन्फेक्ट करने पे क्या होता है, उनकी बॉडी में स्किन है तो स्किन पे ऐसे ठीक है ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, या फिर ऐसे धब्बे टाइप में कुछ जो डिजीज होती है ऐसे बना देगा. उसको हम बोलते हैं एंथ्रैक्स और शॉर्टर डिजीज. ओके. सेकंड इज द वर्कर इन सिल्क इंडस्ट्री. अब सिल्क इंडस्ट्री में कौन सी प्रॉब्लम होती है, सिल्क इंडस्ट्री हैव टू डिप देयर हैंड्स इनटू hot water to judge by touch whether the fine threads of silk have loosened enough to be wound. This often cause blister and often wound or injuries on their hands that can be cause infection. अब देखो सिल्क इंडस्ट्री में क्या होता कि जो कुक्कुन का हमने हॉट वाटर में डाला था ताकि वो इंसेक्ट मर जाए और वो कुक्कुन है वो लूज हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए उनको उसमें हाथ डालना पड़ता है. ठीक है, जिससे उनके हाथ जल सकते हैं. ठीक है, और हाथ में इंजरी हो सकती है या फिर उन पर इन्फेक्शन हो सकते हैं. थर्ड इज द रीलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड रिक्वायर वर्कर्स टू स्टैंड फॉर 12 to 16 hours in a day, resulting in backache and spine problem and problems related to vision. अब देखो जो रीलिंग बताया था, रीलिंग में वो एक बंडल में उनको कलेक्ट करते हैं रील के इन द फॉर्म ऑफ यार्न. ठीक है, सूत के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, फिर रील करते हैं. उनके लिए वर्कर को 12 से 16 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है, जिससे उनको या तो पीठ में दर्द हो जाएगा, उनके स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ये रील की हड्डी में, या फिर उनके विजन के जो आइस प्रॉब्लम है वो हो जाएगी. नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट, workers who are exposed to continuous vapor from boiling cocoons and diesel fumes from machines suffer from respiratory disease like asthma and bronchitis. अब देखो जो सिल्क इंडस्ट्री में क्या होता था, कुक्कून को बॉईल किया जा रहा था. ठीक है, तो बार बार जो बॉईल हो रहा है, बॉईल से वेपर निकलेगी, या फिर जो डीजल मशीन जो डीजल जलता है उनसे जो स्मोक निकलेगी.
तो उससे क्या होता है, उनको रेस्पिरेटरी श्वसन के संबंधी जो सांस लेते हैं उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे अस्थमा हो गया, ठीक है, या फिर ब्रोंकिटिस हो गया, ऐसी डिजीज होती हैं अस्थमा रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज होती हैं, क्योंकि जो कौन को हम बॉयल करते हैं उससे वेपर निकलती है, हार्मफुल होती है वो भी, या फिर जो डीजल वाला मशीन से जो डीजल जलता है उसकी जो स्मोक है वो भी हार्मफुल होती है, तो उनसे उनको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर यूनिट and I hope all of you learn it very well, and thank you all of you for listening me. Have a good day. Bye.